Welcome all in ICT for you channel. Myself Krupesh Nayak. I'm hardly invite you in this channel. As you all know, this channel provide you so many educational 11 standard 12 standard economics and educational video through this channel. So today we are going to discuss standard 12 subject economics revised syllabus for only 2020-21 years for the subject economics. Those who are subscribed this channel, I'm heartily thankful, and those who are new viewers, please subscribe this channel. Write www.ictcoverage in Google and then subscribe this channel. Press the icon button, press the bell button icon and get the notification of educational channel. Then install my ICT Coverage app from Google Play Store. In that so many 1 to 12 links are there. So welcome all here. Myself Krupesh Nayak, standard 12 subject economics, English medium and Gujarati medium both are very aware that 30% syllabus are cancelled by the government's Gujarat Secondary Education Board. Which points are not considered in this? So first of all, we are going to start this standard 12 subject economics रिवाइज सिलेबस फॉर ओनली ईयर 2020-21 यानी मार्च 2021 में जो एग्जाम होगी उसके अंदर जो सिलेबस कट हुए हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। ये पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि कौन से पॉइंट के अंदर क्या क्या कवर अप है, कौन सा पॉइंट कवर अप नहीं है, वो आपको जानने को मिलेगा। आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अपनी टेक्स्ट बुक और अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक के साथ अपने हाथ में पेन रख के बैठे या हाईलाइटर को यूज कीजिए ताकि आपको पता चले कि टेक्स्ट बुक के अंदर से कौन से पोर्शन मार्च 2000 के अंदर जो एग्जाम दी लेने जाने वाली थी, जो मई के अंदर गई है मार्च बोर्ड की एग्जाम, उसके अंदर 12th में गुजरात बोर्ड के अंदर कौन से पॉइंट ध्यान में नहीं लेने हैं, पढ़ने हैं सभी स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट को हर एक पॉइंट पढ़ाएंगे, मगर एग्जाम के अंदर जो बात अच्छे से आपको ध्यान में लेनी है वो है GSCB के सर्कुलर के अंदर जो बात बताई गई है उनका हम यहाँ से डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम ऑल अगेन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बहुत सारे व्यूअर्स गुजराती मीडियम के भी है, इंग्लिश मीडियम के भी है, तो गुजराती मीडियम के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे ધોરણ 12 વિષય અર્થશાસ્ત્ર। અહીંયા તમને ત્રણ મુદ્દા જોવા મળશે। પ્રકરણનું નામ, અભ્યાસક્રમમાં રાખેલ પ્રકરણ મુદ્દાઓ અને અભ્યાસક્રમમાંથી ચાલુ વર્ષ માટે ખાસ કાળજી રાખજો। આ માત્ર વિડીયો ચાલુ વર્ષ એટલે કે 2020-21 ના બોર્ડના જે ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ છે તેને માટે છે। આ અભ્યાસક્રમ આવતા વર્ષ પછીના વર્ષે ધ્યાનમાં લેવાશે નહીં, તેની ખાસ કાળજી રાખવી। માત્ર કોરોના મહામારીને કારણે જે 30% અભ્યાસક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો છે તેના કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં નથી લીધવામાં આવ્યા તેને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું। તો સૌથી પહેલું પ્રકરણ 1 અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખની અંદર વાત કરીએ તો આપણે છેલ્લા કોલમને ધ્યાનમાં રાખીશું। બીજું કોલમ જે છે તે તમારે ભણવાનું છે, પરીક્ષામાં આવશે જ, પરંતુ છેલ્લો મુદ્દો જે છે જે અભ્યાસક્રમમાંથી ચાલુ વર્ષે બાદ કરેલ છે તે મુદ્દાઓની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો છે 1.2.3 1.2.3 એટલે કે વૃત્તાંશ આકૃતિ। તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર 1.2.3 ચેક કરો। 1.2.3 જે છે વૃત્તાંશ આકૃતિ, તેનો મુદ્દો આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો નથી, ભણવાનો છે પરંતુ આપણે પરીક્ષામાં તૈયાર કરવાનો નથી। બીજી છે 1.2.3.1 એટલે કે વૃત્તાંશ આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો। સૌથી પહેલા આપણે વાત કરશું ગુજરાતી મીડિયમની, ત્યારબાદ આપણે અંગ્રેજી માધ્યમ તરફ જઈશું। બીજા મુદ્દાની આપણે બીજા પ્રકરણની વાત કરીએ તો વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકોની અંદર 2.4.1.2 ફરી પાછું 2.4.1.2 રાષ્ટ્રીય આવકની મર્યાદાઓ અને 2.4.2.2 એટલે કે માથાદીઠ આવકની મર્યાદાઓ, આ બે મુદ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાંથી ચાલુ વર્ષે રદ કરેલ છે, તો આ સિવાયના મુદ્દાઓને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું। ત્રીજો પ્રકરણ છે નાણું અને ફુગાવો। નાનું પ્રકરણ છે, સમગ્ર પ્રકરણ રાખેલ છે, આમાંથી કોઈ પણ મુદ્દાને આપણે અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલ નથી, તો નાણું અને ફુગાવાનું પ્રકરણ સંપૂર્ણ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે। ચોથા મુદ્દાની વાત કરીએ બેન્કિંગ અને નાણાકીય નીતિ, તેમાં 4.2.1.1 વેપારી બેંકના કાર્યોનો એ મુદ્દો એટલે કે મુખ્ય કાર્યમાંથી ફક્ત મુદ્દો ચોથો ધ્યાનમાં લેવાનો નથી, એટલે કે 4.2.1.1 વેપારી બેંકના કાર્યમાં જે મુખ્ય કાર્યોમાંથી શાક સર્જનની કામગીરીનો ચોથા મુદ્દાનો છે એનો ચોથો મુદ્દો આખા વેપારી બેંકના કાર્ય ધ્યાનમાં લેવાના એવું નથી, પરંતુ 4.2.1.1 નો એનો ચોથો મુદ્દો જે શાક સર્જનની કામગીરીનો છે તેને આપણે ચાલુ વર્ષે અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલ છે। 4.2.1.2
4.2.1.2 તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર હશે જ તે ભારતમાં વેપારી બેંકોનું અસ્તિત્વ પણ આ વખતે ધ્યાનમાં લેવાયું નથી. તે સિવાયના દરેક મુદ્દાઓ આપણે પરીક્ષામાં ધ્યાનમાં લેવાના છે. પ્રકરણ 5 ની વાત કરીએ, ગરીબી. ખૂબ જ મોટા ફેરફારો ગરીબીના પ્રકરણમાં આવ્યા છે. ગરીબીના નિર્દેશકોના લગભગ 10 કે 11 મુદ્દાઓને આ વર્ષે બોર્ડે ચાલુ વર્ષે અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલા છે. આ સિવાય 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9 અને 5.5.10 એટલે કે રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો, આવાસ યોજનાઓ, સામાજિક સલામતીની યોજનાઓ અને જનધન યોજનાઓને પણ આ વર્ષે પરીક્ષામાં ચાલુ વર્ષે પરીક્ષાના પ્રકરણમાંથી રદ કરેલ છે. ગરીબીના પ્રકરણમાં મોટા ફેરફારો છે, ધ્યાનમાં રાખજો. નિર્દેશકો, રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો, આવાસ યોજનાઓ, સામાજિક સલામતીની યોજનાઓ અને જનધન યોજનાઓ આ 5.7, 8, 9, 10 અને 5.3 આ મુદ્દાઓને ચાલુ વર્ષે અભ્યાસક્રમમાંથી બાદ કરે છે. બેરોજગારીની વાત કરીએ તો બેરોજગારીમાં ખૂબ જ ઓછું પોર્શન બાદ કરેલ છે, માત્ર 6.2.1 અને 6.2.2 એટલે કે સંપૂર્ણ બેરોજગારી અને અર્ધ બેરોજગારી જ આ વર્ષે ચાલુ વર્ષે અભ્યાસક્રમમાંથી આ પ્રકરણના મુદ્દાઓને પરીક્ષામાંથી ઓમિટ કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રકરણમાંથી આ જ 2 મુદ્દાઓ પૂછાશે અને બાકી બધી તૈયારી કરવાની રહેશે. આ ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ નવા પ્રકરણની વસ્તી, પ્રકરણ 7 વસ્તી, તેમાં પણ 2 જ મુદ્દાઓને બાકાત રાખ્યા છે. 7.2.2, 7.2.2 ટેક્સ્ટ બુકમાં આ જ મુદ્દાને 7.2.2 બરાબર લખેલું છે, ત્યાંથી જ તમારે ઉચકવાનો છે. ભારતમાં સ્ત્રી અને પુરુષની વસ્તી અને 7.2.4 વય જૂથ પ્રમાણે ભારતની વસ્તી. આ સિવાયના દરેક મુદ્દાઓને આપણે ધ્યાનમાં લેવાના છે. માત્ર 7.2.2 અને 7.2.4 ના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. કૃષિ ક્ષેત્રની વાત કરીએ, 8મું પ્રકરણ, તેમાં 8.5.2, 8.5.3 અને 8.5.4 એટલે 8.5 નો બીજો મુદ્દો, ત્રીજો મુદ્દો અને ચોથો મુદ્દો, પાકની ફેરબદલી, પાક સંરક્ષણ અને કૃષિ સંશોધનો, આ મુદ્દાઓને આપણે ધ્યાનમાં લેવાના નથી. એ સિવાયના તમામ મુદ્દાઓને આપણે કૃષિના પ્રકરણમાં ધ્યાનમાં લઈશું. 9મો મુદ્દો ખૂબ જ અગત્યનો છે, જેની અંદર ઘણા ફેરફારો થયા છે. વિદેશ વેપારના પ્રકરણની અંદર 9.3, 9.5, 9.6 અને 9.7 એટલે કે 9.3 વિદેશ વેપારના સ્વરૂપને અસર કરતી બાબતો, 9.5 વિદેશ વેપારની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ, વિદેશ વેપારમાં ભારતનો હિસ્સો, ભારતના વિદેશ વેપારનું કદ, સ્વરૂપ અને દિશા, આ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લીધા નથી. ચાલુ વર્ષે અભ્યાસક્રમની અંદર બાકીના તમામ મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરે છે. ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની વાત કરીએ, 10મું પ્રકરણ, માત્ર 10.3 ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે ભારત સરકાર લીધેલા પગલા, ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે સરકાર લીધેલા પગલા 10.3 ચાલુ વર્ષે અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરવામાં આવેલ છે. અને છેલ્લો 11મું પ્રકરણ, ભારતીય અર્થતંત્રમાં નૂતન પ્રશ્ન, તેમાં 11.2.3 શહેરીકરણની સમસ્યા હળવી કરવાના ઉપાયો અને 11.3 આંતરમાળખાકીય સેવાઓમાં જેટલા પણ મુદ્દાઓ આવે છે તે દરેક મુદ્દાઓ આ વર્ષે અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરવામાં આવેલ છે. તો આ વાત થઈ આપણી અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ માટેની. હવે આપણે इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों માટે बात करिए तो चैप्टर नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है. उसके अंदर 1.2.3 पाई डायग्राम ओमिट किया है पेज नंबर 7 के ऊपर. उसके नीचे जो पूरा एस्पेक्ट टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम वो भी कैंसिल किया गया है. तो फर्स्ट चैप्टर में से ये 2 पॉइंट हमें करंट ईयर के अंदर ओमिट किया गया है, वो हमें ध्यान में लेने नहीं है एग्जाम के लिए. चैप्टर 2 की बात करें, 2.4.1 लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड 2.4.2.2 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये दोनों की लिमिटेशंस चैप्टर 2 के अंदर हमें करंट ईयर के अंदर ध्यान में लेनी है. बाकी के हर एक पॉइंट को हमें ध्यान में लेने हैं. अगर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक को कंफर्म करो. आप टेक्स्ट बुक के 2.4.1.2 के ऊपर टिक मार्क करो. अगर नहीं लेके बैठे तो लेके बैठो, पॉज करो वीडियो को और साथ में आप ये पॉइंट टिक मार्क करते जाओ ताकि आप पढ़ते समय ये सभी पॉइंट को एग्जाम के लिए ध्यान में रखना नहीं है, ध्यान में रखना. अब आगे बढ़ते हैं 2.4.2 लिमिटेशन के अंदर जो पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन है वो भी हमें ध्यान में लेनी नहीं है. थर्ड चैप्टर की बात करते हैं हम. थर्ड चैप्टर के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पूरा चैप्टर हमें करना है. छोटा चैप्टर है. इन थर्ड चैप्टर ऑल इन टेस्ट पढ़ना भी है, एग्जाम के अंदर भी कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखना है बात. चैप्टर 4 की बात करें हम तो चैप्टर 4 के अंदर
जो फंक्शंस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, उसके अंदर फोर्थ पॉइंट के अंदर ए पॉइंट है, उसके अंदर क्रेडिट क्रिएशन है। ध्यान में रखना, पूरे फंक्शन को हमने ऑमिट नहीं किया, उसके अंदर जो क्रेडिट क्रिएशन पेज नंबर 37 के ऊपर है, उनकी जो प्रोसीजर है वो हमने ऑमिट की है करंट ईयर के लिए। और 4.2.1.2 प्रेजेंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, ये जो पॉइंट है 4.2.1.2 वो ऑमिट किया गया है। फिर आपको बाकी के सभी पॉइंट को ध्यान में रखने हैं चैप्टर 4 के लिए। चैप्टर 5 ध्यान में रखना, चैप्टर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम बात करें तो 5.3 इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी, उसमें 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 पेज नंबर 53 के ऊपर, 52 के ऊपर से कंटिन्यू है 53 के ऊपर। उसके बाद 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, ये सभी चैप्टर 52, 53, 54, 55 कंटिन्यूस पेज ऑमिट किए गए हैं। उसके बाद 5.8 जो टेबल है उसके नीचे 5.3.11 हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तक का चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। और भी है चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, वो आपको ध्यान से देखना है। पॉवर्टी के चैप्टर के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर आगे की आपने स्टार्ट की। उसके बाद 5.5.7 जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है उसके अंदर 5.5.7.1 दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वो कैंसिल किए गए। 5.7.2 वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम, 5.5.7.3 प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, 5.5.7.4 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा। उसके बाद 5.5.8 हाउसिंग स्कीम, 5.5.9 सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड 5.5.9 जनधन योजना। ये दोनों पेज 61, 62 के ऊपर जो पेजेस के ऊपर जो 5.5.10 तक के जो पोर्शन है वो पॉवर्टी के अंदर से ओनली फॉर दिस ईयर, करंट ईयर 2020-21 की जो कोरोना महामारी के लिए गवर्नमेंट ने 30% ऑमिट किए हैं, उसके लिए ही ये ऑमिट किए गए हैं। अब 6 चैप्टर की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काफी कम कैंसिल हुआ है 6.2.1 और 6.2.2। 6.2.1 दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड 6.2.2 दैट इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो ही पॉइंट हमें ध्यान में नहीं लेने हैं, बाकी के हर एक पॉइंट को हम ध्यान में लेंगे। 6.2.1 और 6.2.2 ऑमिट फॉर द करंट ईयर। 7 चैप्टर की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, उसके अंदर भी बहुत ही कम पोर्शन कट हुआ है। फर्स्ट है 7.2.2, आई रिपीट 7.2.2 मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ये ऑमिट हुआ है। और 7.2.4 एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया, ये 7.2.2 और 7.2.4 के अंदर के पॉइंट सभी हमें ऑमिट करने को बोर्ड ने बोला है। तो दिस ईयर दिस ऑमिट दिस पॉइंट। नाउ फॉर चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर की बात करें तो 8.5.2 मल्टीपल क्रॉपिंग तो पेज नंबर 101 के ऊपर है वो कैंसिल किया है। उसके बाद 8.5.3 क्रॉप प्रोटेक्शन, इसके बाद 8.5.4 एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक्सरसाइज के ऊपर के जो पॉइंट है वो 8.5.3, 8.5.4 और पेज नंबर 101 के ऊपर जो 8.5.2 है वो पूरा हमें कैंसिल करना है एग्रीकल्चर के अंदर। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, चैप्टर नंबर 9 के अंदर थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन कट हुआ है, ध्यान में रखना। चैप्टर नंबर 9 उसमें 9.3 पेज नंबर 106 के ऊपर आप देखो 9.3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, 6, 7, 8, 9, 10 वो तीनों पॉइंट 107 के बाद जो नेक्स्ट पेजेस है 10 पॉइंट इन्वॉल्व हायर डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, ये जो पॉइंट है वो सभी चैप्टर नंबर 9 के करंट ईयर के अंदर ऑमिट किए गए हैं चैप्टर 9 की। और आगे बात करें तो 6 पॉइंट, 7 पॉइंट पूरा कैंसिल हुआ है। उसके बाद 9.5 पॉइंट जो है 9.5 मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन द प्रेजेंट टाइम्स वो, उसके बाद 9.6 पेज नंबर 110 के ऊपर, उसके बाद 111 के ऊपर, 112 के ऊपर, 113 और 114, ये 6 पेजेस जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं जो डायग्राम वाले हैं 9.7.2, उसके बाद जो पॉइंट है ये सभी पॉइंट ऑमिट किए गए हैं। 9.7.3 भी ऑमिट किया गया है
ये सभी पॉइंट को करंट ईयर में चैप्टर नंबर 9 के अंदर से निकाल दिया गया है। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 5 के अंदर ज़्यादा हमें 30% के कवर अप में पोर्शन कंप्लीट हुए हैं, कैंसिल हुए सॉरी। सेम 9.5 चैप्टर नंबर 9 के अंदर 9.5 भी है, जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं वो भी दोनों ओमिट किए गए हैं, क्योंकि वो पाई डायग्राम है। पाई डायग्राम फर्स्ट पोर्शन में अगर ओमिट हुए तो 9 चैप्टर में भी ओमिट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 की बात यहाँ पे पूरी हुई। अब चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 10 के अंदर 10.3 मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स उठाए थे 10.3, उनके 10.3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो सभी ऑमिट हुए हैं। अब चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर 11.2.3 मेजर्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। उनके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट ये सभी कंप्लीट कैंसिल हुए हैं। 11.2.3 कैंसिल हुआ है। उसके बाद 11.3 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सभी पॉइंट 11.3 के अंदर आते सभी पॉइंट का मतलब जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 11 वो पेज नंबर 141 के ऊपर 11.2 टेबल, उसके बाद 11.3.2 हेल्थ, उसके नीचे 11.3.3 इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी पॉइंट को पेज नंबर 142 143 तक टोटली नए सिलेबस में करंट ईयर के अंदर। उसके बाद 144 पेज नंबर 144 के अंदर भी 11.3 का कंटिन्यू जो है पेजेस वो, और 145 के अंदर जो है वो पूरा 11.3 के अंदर ही पोर्शन कवर अप हो रहा है। वो सभी करंट ईयर के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए। एक बार हम फिर से गुजराती मीडियम के जो पॉइंट है वो कवर कर रहे हैं। गुजराती मीडियम के अंदर 1.2.3, 1.2.3.1, 2.4.1.2, 2.4.2.2, 4. थर्ड चैप्टर पूरा है, यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो पॉइंट, सेकंड के अंदर 2 पॉइंट कंप्लीट कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। उसके बाद फोर्थ चैप्टर के अंदर भी 2 पॉइंट के अंदर एक तो साख सर्जन वाले और व्यापारी बैंक નું अस्तित्व, ये सभी पॉइंट कैंसिल हुए हैं। उसके बाद गुजराती मीडियम की बात करें तो गरीबी के चैप्टर के अंदर 5.3, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9 एंड 5.5.10 ये सभी कैंसिल हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की बात करते तो ओनली 2 पॉइंट, संपूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, दैट इज कॉल्ड 6.2.1, 6.2.2 ये हमारे कंप्लीट हुए। उसके बाद के पोर्शन ध्यान में लेने हैं। हम लास्ट पोर्शन की ही बात करेंगे, लास्ट जो कॉलम है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां से कैंसिल हुआ है। बाकी ये जो बीच की कॉलम है वो हमें पढ़ना है। दूसरा टीचर आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ाएंगे, मगर पूरे सिलेबस के अंदर से जो लास्ट कॉलम वाले है वो हमें ध्यान में लेने नहीं है। पॉपुलेशन की बात करें, वस्ती के अंदर भी हम बात कर रहे हैं तो भारतમાં સ્ત્રી પુરુષોની વસ્તી અને વય જૂથ પ્રમાણે ભારતની વસ્તી यानी 7.2.2 और 7.2.4 गुजराती मीडियम के 7 चैप्टर के अंदर ओमिट किए गए हैं, कैंसिल किए गए हैं। कृषि की बात करें हम 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4 यानी पाकनी फेरबदली, पाक संरक्षण, कृषि संरक्षण वो कैंसिल किया गया है। विदेश व्यापार के अंदर विदेश व्यापाરના સ્વરૂપને અસર કરતી બાબતો, વિદેશ વ્યાપારની વર્તમાન સ્થિતિ, વિશ્વ વ્યાપારમાં ભારતનો હિસ્સો અને ભારતના વિદેશ વ્યાપારનું કદ, સ્વરૂપ અને દિશા ये सभी कंप्लीट कर दिए हैं। औद्योगिक विकास માટે भारत सरकार લીધેલા પગલા यानी उद्योग क्षेत्र के अंदर जो 10.3 वो कैंसिल हुए हैं। भारतीय अर्थशास्त्र में नूतन प्रश्न 11.2.3 शहरीकरण की समस्या, हળવીકરણના उपायों અને आंतरमाળખાકીય सेवाओं, यानी गुजराती मीडियम के लिए भी ये पॉइंट हमने रिवाइज कर दिए। सेम इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के अंदर, थर्ड पूरा है, 4 के अंदर, उसके बाद 5 के अंदर थोड़ा ज्यादा है, 6 के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट लेस किए हैं, 7 के अंदर भी 2 पॉइंट लेस किए हैं, 8 के अंदर 2, उसके बाद 9 चैप्टर के अंदर थोड़ा ज्यादा लेस हुआ है, 10 चैप्टर के अंदर थोड़ा सा ही लेस हुआ है, मगर 11 के अंदर बहुत सारा लेस हो गया है सिलेबस हमारा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन
अच्छी तरह से आप गुजरात बोर्ड के जो सर्कुलर है उसके हिसाब से मैंने दी गई है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल मी 9662532418। आई रिपीट अगेन 9662532418। आई रिपीट वंस अगेन 9662532418 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। शायद थोड़ी सी अंदर कोई भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ डाउट है तो मुझे आप सॉल्व करवा सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग ICT कवर यू चैनल फॉर स्टैंडर्ड 11 रिवाइज सिलेबस। So I am thankful to all. Keep watching this video and share and subscribe this channel. Thanks a lot. Thank you for the day. Have a nice day.